Hi everyone, welcome to iQuanta. So this is the third video in the number system playlist. If you haven't watched my previous two videos, I would recommend you to watch those videos and then come to this one. So we have started with the number system classification and I have talked about rational, irrational, natural, integer, whole numbers. So in the continuation of that series, I'll be talking about prime numbers and composite number today. So let's see what is a prime number. So prime number is something, a number which has exactly two factors. 1 and itself. In simple language, if I say a number which is divisible by only two numbers, 1 and the number itself. For example, 2, 3, 5, 7, 11, all these are prime numbers because they are exactly divisible by only two numbers, that the number is 1 and the number itself. Now, another number is composite number, which is something, a number which has more than two factors, or you can say it is divisible by more than two numbers. So example 4, 6, 9, 10, etc. So there are so many composite numbers, there are so many prime numbers. Now it is very important part for any competitive exam. So we have to discuss few properties related to prime number. After that we will see few questions also on this concept. So let's see a few properties related to prime numbers. The first basic one is neither prime nor composite. I have seen many students consider 1 as a prime number. So remember this thing, 1 is neither prime nor composite, because to a number be a prime, it should have two factors, but 1 का सिर्फ 1 ही factor होता है. Second, 2 is the only even prime number because rest numbers are odd. ठीक है, rest prime numbers are odd. Third, number of primes between 1 to 100, 25, 1 to 50, 15, and 50 to 100 will be 10. So remember this thing guys, very important for any competitive exam. Now मैं आपके साथ 1 से 50 जो 15 प्राइम नंबर्स हैं वो लिखकर भी दिखा देता हूं, इन केस आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो. तो 1 से लेके 50 तक जो प्राइम नंबर्स है वो है, पहला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. ठीक है, तो काउंट कर लीजिए आप, 8 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं. टोटल 15 प्राइम्स यू कैन सी 1 to 50 के बीच में. राइट, ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज जो भी डिस्कस करनी बाकी है, उनको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी. फोर्थ इज ट्विन प्राइम्स. ट्विन प्राइम्स सिंपली ऐसे दो प्राइम्स जिनमें एग्जैक्टली 2 का गैप हो, डिफरेंस ऑफ 2. 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 71, 73, and so on. 2 primes with a gap of 2.
ठीक है, विद डिफरेंस ऑफ 2। नेक्स्ट, फिफ्थ, प्राइम ट्रिपलेट। सो प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं? ट्रिपलेट का मतलब आपको समझ में आता है 3 नंबर्स, ऐसे 3 नंबर्स जिनमें 2 का गैप हो। सो देयर इज ओनली 1 ट्रिपलेट, इसके अलावा कोई भी ट्रिपलेट पॉसिबल ही नहीं होती है। एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है, दैट इज 3, 5, 7, जिसमें 2 का गैप है। सो एक बार क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन क्या था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन वाज इफ a plus 2, a plus 4 are prime numbers, how many possible values of a? ए की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? सो यहां पे आप देखेंगे तो जिसको ये नहीं पता देयर इज ओनली 1 ट्रिपलेट, वो क्या कर रहा होगा, वो और भी नंबर्स इमेजिन कर रहा होगा कि कोई और भी ऐसे ट्रिपलेट्स हो सकते हैं जिनमें 2 का गैप हो, बट देयर इज ओनली 1 ट्रिपलेट विच इज 3, 5, 7। सो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए? दैट इज ओनली 1। ठीक है, और क्या वैल्यू होगी वो? ए की 3, राइट? सो रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट 6 पर आते हैं। 101 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। रिमेंबर दिस थिंग, कभी कभार आपकी हेल्प कर देता है। 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अब 3 डिजिट प्राइम नंबर, ओके। अब क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको ये सिखा दिया, लोग क्या सोचते हैं कि अगर ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है तो 1001 4 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। काफी लोगों को मैंने देखा है इसको मिस्टेक को करते हुए, बट गाइस 1001 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं होता है, राइट? अब ये 1001 इज अ वेरी स्पेशल नंबर, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो 1001 क्या होता है वो देखिएगा। 1001 इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। कौन कौन से हैं? 7, 11, 13। So 1001 is a very special number. I will explain this. So rule of 1001. So if you see any 3 digit number repeats ABC, ABC, it simply means ABC into 1001. ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। ABC, ABC का बेसिकली क्या मतलब है? ABC इंटू 1001। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर का अगर आप 1001 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर रिपीट हो जाता है। नाउ अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 345 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा? तो इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट दैट 1001 is hidden, this question becomes easy because you can express this number as 345 into 1001, right? So you can directly say it is divisible by 1001. साथ में you can also say it is divisible by 7, 11 and 13, right? Along with that, it is also divisible by 345. So remember this thing, guys. 1001 is a very special number. It is not a prime number. It is a product of 3 consecutive prime numbers, right? So please keep this thing in mind. Okay. आगे चल के जब हम रिमाइंडर्स पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना रूल याद रखना, 1001 is a product of 3 consecutive prime numbers. Next property, 8th. If P is a prime number greater than 3, then P square minus 1
is always divisible by 24. ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो. You can take P as 5. 5 square minus 1, that is 24. So it is divisible by 24. You can check P is as 7. 7 square minus 1, 48. Again you can say it is divisible by 24. तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है that is your 24. So definitely 24 से हमेशा divisible होगा. ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. And the last property which you guys should know, that is every prime number greater than 3 can be expressed as 6k plus minus 1 form. कोई भी प्राइम नंबर अगर आप 3 से बड़ा देखते हो तो वो किसके फॉर्मेट में होता है, 6k प्लस माइनस 1. मतलब 6 के मल्टीपल से या तो एक कम होगा या एक ज्यादा होगा. मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं. 17, यू कैन सी 6 इंटू 3 माइनस 1. अब बड़े से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं. 71, 6 इंटू 12 माइनस 1. आप 101 को भी चेक कर लीजिए. ठीक है, तो ये हो जाता है 6 इंटू जस्ट अ सेकेंड, 15, 16, 17 या minus 1. 17 into 6 is 102, minus 1 is 101. ठीक है, तो आप कोई भी प्राइम नंबर चेक कीजिए. जैसे 103 चेक कीजिए, वो क्या हो जाएगा, 6 into 17 plus 1. सारे प्राइम नंबर इस फॉर्मेट में होते हैं 6k प्लस माइनस 1, बट 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा. 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है. बट रिमेंबर वन थिंग, इसका जो वाइस वर्सा है वो ट्रू नहीं है. वाइस वर्सा का क्या मतलब हुआ है, मैं इसको रब कर देता हूं. वाइस वर्सा का मतलब भी समझ लीजिएगा, काफी लोग गलतियां कर देते हैं. बट नॉट वाइस वर्सा. मतलब कोई नंबर अगर 6k प्लस 1 की फॉर्मेट में है या 6k माइनस 1 की फॉर्मेट में है, जरूरी नहीं है वो प्राइम नंबर हो. जैसे 25 इज ऑफ द फॉर्म 6 इंटू 4 प्लस 1. अच्छा, जिसको नहीं आया मैं फिर से बता देता हूं. 6k प्लस 1 का मतलब है 6k का मतलब वो 6 का मल्टीपल, प्लस 1 मतलब एक एक्स्ट्रा, माइनस 1 मतलब एक कम. सो 25 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, बट ये एक प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, आप इसी तरह से और भी नंबर्स को चेक कर सकते हैं. मैं एक नंबर और बता देता हूं, 49. यू कैन सी ये भी 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, बट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज वो 7 का स्क्वायर है. 7 से डिविजिबल है, 14 से डिविजिबल है, राइट. सो इट इज नॉट अ 49 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है. ठीक है, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो रिमेंबर दिस थिंग गाइस, सारे प्राइम नंबर 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, बट सारे नंबर जो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में हैं वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड to solve a prime number problem. Now, there is one more interesting thing which you should know and very famous, checking whether a given number is prime or not. So, कोई भी नंबर आपको गिवन है, randomly कोई भी नंबर है, let's say 141 है, 141 है. You have to check whether this number is prime or not. So, what you have to do, take a square root of this number. So, first step is take a square root of this number. So square root is 11 square is 121, 12 square is 144. So this will be definitely 11 point something. Once you got the square root, now what you have to do, the second step will be take all the prime numbers less than or equal to this number. So सारे prime numbers कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11. All these are the prime numbers less than or equal to this, right? Now you have to check with these numbers. अगर इनसे divisible है तो प्राइम नहीं है, अगर इनसे divisible नहीं हुआ तो वो प्राइम है. बस इतना करना है. तो सारे नंबर्स को चेक नहीं करना होता है, सिर्फ उसके स्क्वायर रूट से जितने भी छोटे नंबर्स बनते हैं वो भी प्राइम, सिर्फ उनको चेक करना है. तो आप 141 को 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा.
141 को 3 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा बिकॉज डिजिट का सम 6 हो रहा है, 1 + 4 + 1, सो इट इज डिविजिबल बाय 3, राइट। तो ये 3 से डिविजिबल हो जाता है। आप चेक कर लेना, 47 × 3 141 होता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से 141 is not a prime number. Let's take one more example. आपसे पूछा गया, tell me 173 is a prime number or not. So what you have to do, 173 का स्क्वायर रूट, 173 का स्क्वायर रूट ले लीजिए। So 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 144, 13 का स्क्वायर इज 169, so this will be 13 point something. So मैं क्या करने वाला हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनसे चेक करने वाला हूं। So when you divide this number by 2, not divisible. When you divide this number by 3, not divisible. When you divide this number by 5, not divisible. When you divide it by 7, again 7 to 14, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखकर भी दिखा सकता हूँ आपको भाई, 7 to 14, या पूरा डिटेल में ही देख लो, बट ये सारी चीजें आपको माइंड में करनी है। 7 to 14 33 नहीं है, राइट। सेम गोज फॉर 11, व्हेन यू चेक फॉर 11 बन जाए 11, बचा कितना 6, 63, अगेन नॉट डिविजिबल। सेम गोज फॉर 13 बन जाए 13, बचा क्या 4, 43 नहीं है डिविजिबल। सो 173 इज अ प्राइम नंबर। So in this way you can check any number is a prime or not, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होंगे तो क्वेश्चंस काफी आसान हो जाते हैं। So this is in our prime number and composite number. Now we are gonna solve few questions, but मैं आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा, आप 5 क्वेश्चंस खुद से ट्राई कीजिएगा। उन 5 क्वेश्चंस में से आप कितना करेक्ट करते हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आई गॉट 5 out of 5, आई गॉट 4 out of 5 और आई गॉट 3 out of 5, ठीक है। प्लीज उसको मेंशन जरूर करना। साथ में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप डाउट भी मेंशन कर सकते हो, मैं पर्सनली आपके डाउट का आंसर करूंगा उसी कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में, ठीक है। ओके गाइस, आफ्टर दिस वी हैव समथिंग इन आवर कोर्स, दैट इज आवर लाइव क्लासेस, जो ऑलमोस्ट हर कोचिंग प्रोवाइड करता है, बट आवर एक्स फैक्टर इज एप्लीकेशन क्लासेस। So once you are done with the live classes, immediately after live classes एक एप्लीकेशन क्लास होती है, जो क्या होता है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसको आप अप्लाई करके देख रहे होते हो और कैट लेवल क्वेश्चंस के साथ कर रहे होते हो। तो बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आपने कुछ सीखा और उसी का एक एप्लीकेशन मिल जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट प्रॉपरली आपको क्लियर हो जाता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट iConta. Okay, so let's begin with the first question. So first question is, which of the following is our prime? तो प्राइम चेक करने के लिए वही कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि यू हैव टू टेक दिस स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 241, सो 241 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर्स याद होनी चाहिए। सो 15 का स्क्वायर है 225, 16 का स्क्वायर है 256, सो 15 पॉइंट समथिंग। सो क्या करने वाले हैं हम, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 इन सभी नंबर से चेक करने वाले हैं वेदर दिस 241 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7, 11 और 13। सो 2 से नहीं है, 3 से भी नहीं है, डिजिट का सम देख सकते हो, 5 से लास्ट में 0 और 5 देखना होता है, 7 से भी नहीं है, 7 3 जा 21 बचेगा 31, 11 से भी नहीं है, 11 2 जा 22 बचेगा 21, 13 से भी नहीं है, 13 बन जा 13 बचेगा 111, right? So not divisible by any of these 6 numbers. So we can say 241 is definitely a prime number. Let's talk about 337. So 337, 18 का स्क्वायर होता है 324. So 18 point something. So कौन कौन से नंबर्स के लिए चेक करने वाला हूं मैं, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। 2 से नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से देखिए 7 4 जा 28, 57 बचेगा नहीं होगा,
11 से देखो 33 डिविजिबल है बट 7 बच जाएगा। 13 से चेक कीजिए, 13 2 जा 26, बचेगा 77, नहीं होगा। 17 से चेक करते हैं, 17 से भी नहीं हो रहा है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है 391, 19 पॉइंट समथिंग। सो वी आर गोना चेक विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज प्राइम नंबर्स। सो 2 से नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से, 7 5 जो 35 41 नहीं, 11 से 11 से भी नहीं, 11 3 जो 33 बचा 6 61, 13 से 39 होता है बट 1 बच जाएगा, 17 से 17 2 जो 34 51, या 17 से डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल है। So that's why we can say 391 is not a prime number. 571, 571 देखो 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576, so this is 23 point something। ठीक है, तो आप स्क्वायर जो भी प्राइम्स होंगे, कौन कौन से प्राइम्स के लिए चेक करने वाले हो, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। ठीक है, इन सभी के लिए चेक करोगे। सो 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, डिजिट का सम आप देख सकते हो 3 के लिए तो। ठीक है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से 7 8 जा 56 नहीं है, 11 5 से 55 21 बचेगा नहीं है, 13 से 13 4 जा 52 51 अगेन नहीं है, 17 से 17 3 जा 51 6 बचेगा 61 नहीं है, 19 से चेक कर लेते हैं, 19 3 जा 57 है 1 बच जाता है, और 23 से चेक करना पड़ेगा, 23 2 जा 46 ये भी नहीं है बिकॉज डिविजिबल 23 की टेबल में नहीं आता है। सो दैट्स वाई द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो दीज 3 नंबर्स आर प्राइम। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर p and q such that p is a prime and q is a composite number. So question says, first statement is p into q can be an odd number. Can be means we have to look for the possibility. ठीक है, एक केस में भी सेटिस्फाई हुआ तो हमारा आंसर वैलिड है। ठीक है, कैन बी मतलब अ पॉसिबिलिटी। सो p इज अ प्राइम नंबर, यहां पे लिख देता हूं मैं, एंड q इज अ कॉम्पोजिट। मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करना है, ऑड। सो इफ आई कंसिडर p as 3 and q as 9, you can see 9 into 3 is 27, q 9 है, कॉम्पोजिट है, वैलिड है, 3 प्राइम है, वो भी वैलिड है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है 27 which is a odd number, so this statement is correct. Second, q upon p can be a prime, q upon p can be a prime। तो अगर मैं इन्हीं को लेता हूं, 9/3 is 3, I am getting a prime number, right? It is a prime number, so this is also valid. आप एक और केस चेक कर सकते हो, जैसे 10/5 देख लो, 2 आ जाता है ना, तो मैंने क्या किया, p को ये ले लिया, q को ये ले लिया, राइट? तो तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसने बोला है q upon p कैन बी अ प्राइम नंबर, या वी आर गेटिंग अ प्राइम नंबर। p प्लस q कैन बी अ प्राइम नंबर, इन दोनों का सम प्राइम नंबर हो जाए, तो इफ आई टेक p as 2 and q as 9, the sum of these two will be 11, and 11 is a prime number, so it is also possible. So that's why the answer is option number D. Next, third question. Consider the following in respect of prime numbers and composite number. ठीक है, so this is prime, this is composite. Again this question of a possibility, you can see possibility, ठीक है। So p plus c upon p minus c can be even, तो even हमें बनाना है। even देखो, दो नंबर को डिवाइड करके even कैसे आता है, या तो even upon even हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाएं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं p को ले लेता हूं, लेट्स से 11, और c को ले लेता हूं 9। सो 11 plus 9 is 20, 11 minus 9 is 2,
that is 10. So this is an even number, right? So this is possible. 2p plus c can be odd. 2p plus c can be odd. चलो इसी को देख लो. 2 into 11 plus 9. Yes, odd आएगा. ये satisfy हो गया. pc can be odd. Again, इसी को देख लीजिए. इन दोनों का प्रोडक्ट ऑड होना चाहिए. बिल्कुल सही बात है. ऑड हो रहा है. So that's why the answer is option number D. Next, fourth question पर आते हैं. If n is equal to 1 plus x, where x is the product of 4 consecutive positive integer. 4 consecutive positive means natural number. तो अगर मैं x को, अगर मेरे को इस तरह के क्वेश्चन को करना है, so what you have to do? Take small numbers. If it is satisfied for the smallest numbers, it is applicable for the large numbers as well. So I am taking first 4 numbers as 1, 2, 3, 4. X is the product, so product करके आ जाता है 24, so X is 24. So N is 1 plus 24, that is 25. Then which of the following is true? So N is odd, yes, this is valid, right? N is a perfect square, yeah, this is a square of 5, so this is also valid. So we are getting the right answer as A. आप चाहो तो दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे 2 into 3 into 4 into 5. ये कितना हो जाएगा? 5 into 4 is 20, 3 60 into 2 120. So 120 plus 1 is 121. So odd होगा, परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, राइट? प्राइम नंबर नहीं होगा. तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यूज. इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यूज तो वो बड़े नंबर्स पे भी वैलिड हो जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. लेट x be a 4-digit positive integer such that unit digit of x is prime. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? 2, 3, 5, 7. बिकॉज डिजिट की बात करें और डिजिट 9 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए 7 तक लेंगे. एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ x इज ऑल्सो प्राइम. सो इन सबका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो प्राइम आए. तो वो कैसे हो सकता है? अगर मैं यहां पे कोई नंबर लेता हूं, लेट्स से 2, तो 2 into 2 4 हो जाता है, वो तो एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा. मुझे बनाना है प्रोडक्ट भी प्राइम. सो दैट इज ओनली पॉसिबल इफ आई टेक डिजिट्स जिनका कोई रेलेवेंसी ना हो, जिसका 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ही रहे, क्योंकि प्राइम ही रहे. तो वो तभी पॉसिबल है व्हेन डिजिट्स आर 1 1, बिकॉज 1 into 1 into 1 into 2 इज 2 ओनली. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्राइम ही रहेगा. सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 1, 2, 3, 4. सो वी आर गेटिंग 4 such numbers. So that's why the answer is 4. तो जिन लोगों के 5 out of 5 आए हैं या 4 out of 5 करेक्ट हुए हैं, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. Okay guys, a brief idea about our modules. So in our course we also provide non-engineer quant module, जहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बेसिक से चीज़ें डिस्कस की हैं, इसी तरह से हम पूरा बेसिक से डिटेल में चीज़ें डिस्कस करते हैं. तो 70+ वीडियोज ऑफ बेसिक मैथ्स स्पेशली फॉर NCERT क्लास 6 to 10th है, और उसमें हमने फिर कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाले हैं जो कैट रेलेवेंट रहने वाले हैं. दिस इज समथिंग कट शॉर्ट मॉड्यूल जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा. And this is our course detail which you can check out. Okay. So guys, I hope you have liked this video. अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल so that you do not miss any update which is relevant to your CAT preparation. और नंबर सिस्टम की इस तरह की वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलती जाएंगी, तो मेक श्योर कि आप डेली वीडियोस को चेकआउट करें. और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. मैं पर्सनली उस वीडियो के कमेंट्स को देखने वाला हूं कि कहीं भी कोई भी क्वेरी ना रह जाए. ठीक है, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट्स आए पूछिए, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.